Hello and welcome to all. I thank you all for joining and adding glory to the event. I'm the Best Mom has come up with this webinar just before a few days from Diwali to make this festival of light more enlightening for children dealing with autism and ADHD. We respect the valuable presence of our guest for the day, Dr. Meenal Garg, who will be having the session. It's an interactive session with Dr. Anuj Rastogi. Dr. Meenal Garg is a consultant pediatric neurologist at Surya Hospital, Jaipur. And Dr. Anuj is a neonatal pediatrician and co-founder of I'm the Best Mom. So today, I would request, please tune in till the end of the session to interact and extract more from today's topic. It's very important, tips and tactics to manage children with autism and ADHD during this festive season and Diwali. I would request Dr. Anuj to carry on the session with Dr. Meenal, and to all our audience today, I would request if you have very specific question to today's topic, please post it in the chat box. We will take it after this session. Over to you, Dr. Anuj. Thanks, Diptiman. When we talk about ADHD and autistic children or autistic spectrum disease, sometimes parents, they worry, sometimes they think their IQ is low or there's some problem with their brain. In fact, these are the children, those who think differently. They are not having the thought process of the common people. In fact, they think differently. They are not bad children. They are not because of bad parenting. They are just different. Their focus is different. In a way, ADHD patient, they have too much focus in too many things. They are hyper focused. And in fact, those people, those who think differently, they make their name or they can be very famous. All the famous legendary, they think differently. That is why they become famous. So they have a potential to be very famous in time to come. So don't, in fact, sometimes most of them, they are having higher IQ than their peers. With this background, and if I'm trying to simplify this topic, and I will request Dr. Meenal, I welcome you, Dr. Meenal, on this platform. Kindly guide us in few lines what is autism and what is ADHD. So thank you, sir. सबसे पहले good evening, and जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, I would like to wish them a very happy Diwali in advance. I would like to thank the team of I Am the Best Mom, जो कि इतने excellent sessions organize कर रहे हैं parents के लिए, and the team behind Mr. Diptiman, Mr. Ajinkya, and for having me here today. And I would also like to especially thank Dr. Anuj, जिन्होंने इतना time निकाला इस session के लिए to moderate this session and to make this happen for all the parents. So, sir has rightly expressed his views about autism and ADHD, that these are the children who do not think like us. So, autism or ADHD basically neurodevelopmental या neurobehavioral disorders हैं, जिनमें कि जैसा कि सर ने कहा, बच्चे को intellectual disability या mental retardation नहीं होता है. तो अगर हम autism की बात करें, तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें basically बच्चों का जो mental level है, जो IQ है, या जो उनकी motor development है, ये यूजुअली टाइम के साथ अच्छी रहती है, लेकिन उनकी सोशल और लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो टाइम के साथ उतनी डेवलप नहीं हो पाती. रिलेटिवली वो सोशल इंटरैक्शन में और लैंग्वेज डेवलपमेंट में अपने साथ के बच्चों से थोड़ा पीछे रहते हैं. इसके अलावा ऑटिज्म में और भी बहुत सारे एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. ADHD या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें बच्चों को दो तरह की मेन परेशानियां आती हैं. एक इनअटेंशन, यानी कि किसी भी काम पे फोकस ना कर पाना, ध्यान ना दे पाना, किसी टास्क को कंप्लीट ना कर पाना. और दूसरी हाइपर एक्टिविटी, यानी कि जरूरत से ज्यादा एक्टिव रहना, इधर से उधर घूमना, अपने कामों को पूरा ना कर पाना, दूसरे बच्चों के साथ अच्छे से इंटरैक्ट नहीं कर पाना, लड़ाई झगड़ा करना. इनअटेंशन और हाइपर एक्टिविटी अलग अलग या किसी भी कॉम्बिनेशन में इन बच्चों में हो सकते हैं. So, I think I would like Dr. Anuj sir to introduce today's topic, and then we can take it further. Today we are talking because these are hypersensitive children. Right. जो कि हमारे तरह दिखते हैं बट हमारी तरह सोचते नहीं है और उनका फोकस डिफरेंट है. तो ऐसे में जब फेस्टिव सीजन है, जब पटाखे छूटने वाले हैं और नए नए गेस्ट आते हैं, तो ये जरूरी नहीं है उनके साथ इंटरमिंगल करें. और समटाइम दे गेट एक्साइटेड और इरिटेटेड, दे बिकम नास्टी आल्सो.
So how to treat these children in these situation? तो इसी टॉपिक पे आज मैं डॉक्टर मीनल गर्ग को कुछ सवाल पूछूंगा. डॉक्टर मीनल, why do children with autism ADHD find it difficult to cope around the festive seasons? राइट, सो दिवाली हमारे लिए साल का सबसे बड़ा त्योहार है. हम चाहे बड़े हों चाहे बच्चे हों, ऑल ऑफ अस आर सो एक्साइटेड कि ये फेस्टिवल आने वाला है. हम काफी टाइम से इसकी प्लानिंग करते हैं. इस टाइम पे मोस्ट ऑफ अस आर वेरी बिजी. पर जो चीजें हमें दिवाली के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत एक्साइटिंग लगती हैं, वही चीजें जिन बच्चों को न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनको परेशान कर सकती हैं, उनको डिफरेंट लग सकती हैं. इनमें से बहुत सारे बच्चों को सोशल इश्यूज रहते हैं, कोपिंग यानी किसी चीज से डील करने में इश्यूज रहते हैं. इनको सेंसरी इश्यूज, सेंसरी प्रोसेसिंग डिफिकल्टीज रहती हैं. तो जैसे कि दिवाली पे सर ने कहा कि बहुत ही ब्राइट लाइट्स, हर जगह डिस्को लाइट्स, ब्राइट लाइट्स, आप देखें दुकानों के बाहर लाइट्स चल रही हैं, बहुत अट्रैक्टिव पटाखे चल रहे हैं. कभी भी पटाखा चलता है, लाउड साउंड्स हैं, हर जगह म्यूजिक है, तरह तरह का खाना बन रहा है या तरह तरह की पटाखों की तो स्मेल्स चेंज हो जाती हैं. तो इन बच्चों के लिए डिफरेंट टाइप की लाइट्स, साउंड्स, स्मेल, इनको प्रोसेस करना बड़ा ही डिफिकल्ट हो जाता है. अगर हम घर में देखें तो पेरेंट्स बहुत बिजी हैं, वो गिफ्ट्स ला रहे हैं, वो लोगों से मिल रहे हैं, दिवाली की सफाइयां हो रही हैं घर में. तो बच्चों का क्या है, रूटीन बहुत ज्यादा चेंज हो गया है. हो सकता है इस टाइम पे उनका जो स्कूल है, जो थेरेपी है, वो भी इंटरप्ट हो जाए 5 6 7 डेज के लिए. तो ये जो रूटीन में चेंज है, इससे भी कोप करना क्या है, बच्चों को बड़ा ही डिफिकल्ट लगता है. इस टाइम पे वो नए नए लोगों से मिल रहे हैं, दे आर गोइंग टू द मार्केट, उनके घर पे लोग आ रहे हैं, दिवाली पार्टीज हो रही हैं. सो दे आर फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू एडजस्ट टू दीज पीपल. नए नए लोगों से मिलना, उनको हग करना या उनसे हाथ मिलाना, उनसे किस तरह से इंटरेक्ट किया जाए, या इतने बड़े ग्रुप में किस तरह से अपने आप को मैनेज किया जाए. तो उनकी एंजाइटी, उनके सोशल, उनके एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स जो हैं, ये सभी इस टाइम पे फोर फ्रंट पे आ जाते हैं. साथ साथ क्या है कि पेरेंट्स भी चाहते हैं कि वो इंजॉय करें, वो भी बिजी हैं, तो उनको भी इस चीज से डील करना कई बार बहुत डिफिकल्ट लग सकता है. हालांकि हर बच्चा डिफरेंट होता है. ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्मली जिन भी बच्चों को ऑटिज्म है या एडीएचडी है, वो सभी बच्चे इसी तरह से एक्ट करेंगे या सभी को इन सारी चीजों से प्रॉब्लम होगी. ऐसा जरूरी नहीं है. हो सकता है किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट से किसी बच्चे को प्रॉब्लम, या हो सकता है नहीं भी हो, दे माइट बी एबल टू एडजस्ट ऑल्सो. सो दिस एनवायरमेंटल फैक्टर्स या हर बच्चे का जो एक कोप करने का लेवल है, वो डिफरेंट है. सो इट्स नॉट वेरी इजी टू प्रिडिक्ट कि क्या चीज है जिससे बच्चे को कब प्रॉब्लम होगी. सो बेसिकली ये सब जो चीजें हैं, नए नए सेंसरी इश्यूज जो हैं या क्राउड्स हैं, रूटीन में चेंज है, इससे जिन बच्चों को न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स है उनको परेशानी होती है किसी भी फेस्टिवल के या किसी भी नए इवेंट के दौरान. What can we do beforehand, before the festival, to help them? How can we make them ready for these things? राइट. तो वही मैं पेरेंट्स को बताना चाहूंगी कि ये जो तैयारी है, या मतलब इतने बड़े इवेंट के लिए बच्चे को तैयार करना है, ये ऑब्वियसली कुछ दिन पहले ही शुरू करना चाहिए. क्योंकि हाँ, इतनी सारी नई चीजें हो रही हैं, तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बच्चा उसी दिन सारी चीजों से कोप कर लेगा, या उसी दिन हम दिवाली के दिन या छोटी दिवाली के दिन शुरू करेंगे इन चीजों के बारे में तैयारी करना. तो पहले से ही हमें क्या है, बच्चे को समझाना है कि ओके, दिवाली इज अ 5 डे फेस्टिवल, किस दिन पे क्या होने वाला है, दिवाली क्या चीज है, या अगर हम बात करें तो धनतेरस या भाई दूज, हमारे घर में उस टाइम पे क्या रिचुअल्स होते हैं, क्या चीजें हैं जो हम करेंगे, किस तरह का रूटीन फॉलो किया जाएगा. इसके लिए हम पिछले साल की फोटोग्राफ्स हैं या नेट पे कोई वीडियोस हैं, स्टोरीज हैं, इन सब की हेल्प ले सकते हैं. इन चीजों का हम जितना रेपिटेशन करेंगे, बार बार बताएंगे, बच्चा उतना ही रेडी होगा उस चीज के लिए. हम बच्चों के लिए कुछ एक्टिविटीज प्रिपेयर करके रखें, चाहे उनको ऑटिज्म है चाहे एडीएचडी है, कि अगर बच्चे का मेल्ट डाउन होता है या वो कोप नहीं कर पा रहा है, तो हम उन एक्टिविटीज में बच्चे को एंगेज कर सकते हैं. अगर बच्चे की मेडिकेशन चल रही है, तो कई बार हम रेकमेंड करते हैं कि छुट्टियों के टाइम पे आप मेडिकेशन बंद कर दें. बट ऐसे स्ट्रेसफुल टाइम पे, दिवाली के टाइम पे आप मेडिकेशन बंद नहीं करें, मेडिकेशन कंटिन्यू रखें. मोस्ट जो बच्चे हैं वो कुछ ना कुछ थेरेपी भी पहले से ले रहे होंगे, माइट बी ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी. तो आप अपने थेरेपिस्ट के साथ भी वर्क करें, बिकॉज दे विल बी ऑल्सो एबल टू टेल यू कि क्या चीजें आप कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके बच्चे को अंडरस्टैंड करते हैं.
तो क्या चीजें आप कर सकते हैं कि बच्चे को इस तरह की परेशानी नहीं आए। इसके अलावा हम एक एक्टिविटीज की लिस्ट प्रिपेयर रखें, अपने घर में एक सेफ प्लेस बनाएं। ये एक डार्क कॉर्नर हो सकता है, एक वाइट कॉर्नर हो सकता है, एक डेजिग्नेटेड सेफ स्पेस हो सकती है कि बच्चा अगर ओवरवेल्म हो रहा है या उसको परेशानी आ रही है एडजस्टमेंट में, तो वो वहां जाके कुछ ब्रेक ले सके। तो ये एक सेफ स्पेस हम पहले से ही डेजिग्नेट कर सकते हैं और पहले से ही बच्चे को, पेरेंट्स को, फैमिली को इसके बारे में पता हो सकता है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज हम ये करें कि जो भी हमारे आसपास लोग हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स हैं, कोई भी ऐसे लोग हैं जिनके साथ हम दिवाली सेलिब्रेट कर सकते हैं, हो सकता है वो हमारे फ्रेंड्स हों, कुछ ऐसे रिलेटिव्स हों जिनसे हम साल में एक ही बार मिलते हो, तो उनको हम पहले से अवेयर कर दें कि यस, बच्चे के ये इश्यूज हैं, आप बच्चे को इस चीज के लिए फोर्स नहीं करें, या हम आप इस तरह से बच्चे को ये हगिंग के लिए या बहुत ज्यादा शेक हैंड करने के लिए या बड़े ग्रुप में इंक्लूड करने के लिए कोशिश नहीं करें। दिस इज व्हाट ही कैन डू, ही और शी कैन डू, एंड दिस इज व्हाट वी आर हैप्पी विद। तो इतना ही प्रोबेबली हम कर पाएंगे। कि पेरेंट्स को समझना पड़ेगा, इफ आई कुड आई वुड, ये पूरी लाइफ का सिद्धांत है। अगर मैं कर सकता तो जरूर कर देता। आप इसको धीरे धीरे रेडी करिए और अपने बच्चे के मन में भी ये भावना नहीं आने देनी है कि वो ही इज इंफीरियर टू एनीवन, ही इज डिफरेंट, ही इज नॉट इंफीरियर। जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी करी जाती है इन बच्चों की, उसमें बेसिकली उन्हें बार बार रिमाइंड कराया जाता है दे आर गुड, दे आर ओके, दे आर डिफरेंट। तो इसलिए आप अपने बच्चों के लिए, जैसा कि मैम ने टिप्स दिए हैं कि आप उनसे वीडियो कॉल करके रिलेटिव से बात करा सकते हैं, थोड़ी सी हेलो हाय करा सकते हैं, सो दैट द फैमिलियर, जितनी फैमिलियरिटी हो जाएगी बच्चा उतना एट ईज फील करेगा उनके साथ। और आप उसे किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करना, क्योंकि वो उसका जो ब्रेन की ट्यूनिंग है, जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, वो भगवान ने थोड़ा डिफरेंट बनाया। what can we do the day of the festival to help them? So you already have told, you create a separate corner for them. If they want to calm down there, you can ask them to sit there. What else we can do? Right. So sir, again कुछ चीजें हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं, like we have to stick to a schedule. जिन बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम्स है, वी ऑलरेडी नो, पेरेंट्स को पता है कि दीज किड्स लव टू स्टिक टू अ शेड्यूल, तो ऑब्वियसली हमारा शेड्यूल जो है वो उस टाइम पे कुछ चेंज हो रहा है, लेकिन हम पहले ही बच्चे को बताएं कि ये शेड्यूल है और उस शेड्यूल को हम फॉलो करें। ये शेड्यूल हम पहले से ही, इन केस ऑफ ओल्डर चिल्ड्रन, हम लिख के रख सकते हैं या विजुअल शेड्यूल बना सकते हैं कि इतने बजे उठेंगे, इतने बजे ये चीज करेंगे, इतने बजे ये चीज करेंगे, देन ऐसा होगा ऐसा होगा। तो बच्चे को पहले से पता है कि मुझे क्या एक्सपेक्ट करना है। अगर बच्चे को लाइट से आपको लग रहा है कि बहुत प्रॉब्लम है, पटाखों से या लाइट से, तो जैसे हमने बात की कि एक डार्क कॉर्नर हम बना सकते हैं, कर्टन्स इस तरह के लगा सकते हैं कि उसके अंदर बहुत ज्यादा लाइट नहीं आए। अगर मोस्टली इन बच्चों को साउंड से काफी प्रॉब्लम्स होती हैं, अचानक जब पटाखे एकदम से साउंड आती है, क्योंकि बच्चा उसके लिए प्रिपेयर्ड भी नहीं होता है, तो हम कोई ईयर मफ्स, कोई कॉटन प्लग्स का यूज कर सकते हैं। कई बच्चों को ईयरफोन्स लगा के म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, तो अगर बच्चा वो करना चाहता है तो हम उसे उस तरह से ले सकते हैं। अगेन जो हमने बात की, अपनी मेडिकेशंस, अपनी थेरेपी, उस चीज को हमें फॉलो करना ही है उस टाइम पे भी। एक आप ये ध्यान रखें बच्चा क्या खा रहा है। हो सकता है आपका बच्चा ऑलरेडी किसी स्पेशल डाइट पे हो, यू माइट बी डूइंग सम डाइट फॉर ऑटिज्म और एडीएचडी, और इफ दे हैव सीजर्स दे माइट बी ऑन कीटोजेनिक डाइट। तो मोस्टली दिवाली के टाइम क्या होता है, सो मेनी पीपल आर कमिंग, अलग अलग तरह की चीजें बन रही हैं, बच्चा बहुत ज्यादा शुगरी खाना नहीं खाए, इस तरह की चीजों का भी हमें खास ध्यान रखना चाहिए। कुछ चीजें जैसे सर ने बताई कि बच्चे को फोर्स नहीं कीजिए कि नहीं ये चीज तो आप करो ही, एक्सपेक्टेशन अपनी इस तरह की हमें नहीं रखनी है। जहां बच्चा कंफर्टेबल है, जिस तरह से कंफर्टेबल है, उसी तरह से हमें उसके साथ डील करने की कोशिश करनी है। अगर हमें लग रहा है कि स्पेसिफिक चीज से परेशानी हो रही है तो स्पेसिफिक चीज को छोड़ दें, रादर देन रिस्किंग के एक मेल्ट डाउन या एक बहुत ही खराब सिचुएशन बच्चे के लिए क्रिएट हो जाए। जब भी बच्चा कोई चीज अच्छे से कर रहा है, हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी उस तरह से कर रही है, उससे बेटर कर रहा है, तो हमें उसे प्रेज भी करना है, उसे एक पॉजिटिव फीडबैक भी देना है कि यस यू हैव डन दिस वेरी नाइसली, हमारी एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा था, जैसा हमने सोचा था आपने वैसा ही किया, राइट। So that will also, I mean, boost their confidence. That will also help with their morale.
दूसरे लोगों से हमें मिलना है तो अगेन हम बहुत छोटी गैदरिंग्स रखें, बड़ी पार्टीज को अवॉइड करें। अगर कोई लोग हमारे घर आ रहे हैं तो बच्चा अपनी पेस पे उनसे मिल सके, नॉट लाइक दे हैव टू इंटरेक्ट विद एवरीबडी, एवरी सिंगल पर्सन हु इज कमिंग। तो जरूरी नहीं है कि हम ऐसा करें। अगर बच्चे को सेंसरी इश्यूज है तो हम खुद पटाखे चलाना या इन चीजों को ऑफ कोर्स वी कैन अवॉइड फॉर आवर चाइल्ड। सो आई थिंक some of these things might help. एंड इन केस, स्पेशली इन केस ऑफ चिल्ड्रन विद ADHD, हम उन्हें पहले से ही कुछ काम दे सकते हैं, कुछ चोर्स दे सकते हैं, क्योंकि दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू डू। बिकॉज वो नहीं चाहते एक जगह पे बैठना, दे वांट टू पार्टिसिपेट, बट दे मे हैव इश्यूज व्हाइल पार्टिसिपेटिंग आल्सो। तो कुछ एक्टिविटीज के दीज आर द थिंग्स, या दिस इज हाउ यू कैन हेल्प अस, दिस इज हाउ यू कैन हेल्प, दिस इज हाउ यू कैन पार्टिसिपेट। तो ये चीजें हम उनको पहले से ही बता सकते हैं, सो दे कैन डू दोज थिंग्स एट दैट टाइम, दे विल आल्सो फील गुड अबाउट देमसेल्व्स, एंड ऑफ कोर्स वी विल हैव लेस ऑफ द नेगेटिव एस्पेक्ट्स। राइट। तो जैसा डॉक्टर मीनल ने बताया कि जो आप अपने बच्चों को पहले से रेडी रखिए, और जो भी टास्क देने हैं वो शॉर्ट टास्क देने हैं। शॉर्ट जो टास्क देना है या जो उसे सिखाना है, दैट शुड बी हैविंग ब्रोकन इंस्ट्रक्शंस रादर देन आप किसी बच्चे से बोलो जाओ एक गिलास पानी लेके आओ, जाओ अंकल के लिए ये करो। सो दैट यू शुड ट्रेन देम इन ए ब्रोकन सेंटेंसेस और ब्रोकन टास्क। तो धीरे धीरे वो ट्रेंड हो जाते हैं, और फिर जब एक बार सीख जाते हैं तो फिर वो वैसा ही करने लगते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जहां हम इंडिया में लैक करते हैं, इधर वी ब्लेम टू द डॉक्टर और वी ब्लेम टू आवरसेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्नोसिस समझनी चाहिए, डायग्नोसिस के अनुसार उसका ट्रीटमेंट सारा होता है। एंड मल्टीपल दिस इज मल्टीपल डिसिप्लिनरी, जिसके अंदर मल्टी डिसिप्लिनरी, जिसके अंदर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, मेडिसिन एंड डेवलपमेंटल न्यूरोलॉजिस्ट, पीरियडिक न्यूरोलॉजिस्ट, बहुत सारे लोगों की टीम लगती है जब बच्चे के लिए हम कुछ कर सकते हैं। आप सिर्फ एक दवाई पे, एक टॉनिक पे उसको रन करना चाहते हैं तो दैट इज रॉन्ग। कुछ लोग अब क्योंकि थेरेपी सेंटर्स खुल चुके हैं, जो थेरेपी सेंटर पे जाना शुरू कर देते हैं तो वो वहीं जाते रहते हैं, वो डॉक्टर को मिस कर देते हैं। जबकि थोड़ा प्रॉपर और जो उसकी जो मेडिसिन की फाइन ट्यूनिंग है, जो लाइक ADHD के अंदर अगर हम ब्रेन स्टिमुलेंट यूज कर रहे हैं तो उनकी फाइन ट्यूनिंग है। और क्योंकि हर बच्चे को एक दवाई सूट करेगी, इट इज नॉट नेसेसरी, किसी बच्चे को कोई दवाई सूट करेगी। एंड डिफरेंट कंपनी की जो फॉर्मुलेशन है थोड़ा डिफरेंट होती है, किसी की सस्टेन रिलीज है, किसी और स्टार्ट जब भी जो ब्रेन की दवाई है वो स्टार्ट जो होती है वो लो डोज से स्टार्ट करके वी ऑप्टिमाइज दैट ट्रीटमेंट। So you should continue medical treatment as well as therapy part also. There is no magic wand for the child. There is no magic wand for any disease. There is a protocol. There are system. There are things which you should follow. Rather than wasting your time कि दही खिलाए ना खिलाए, चावल खिलाए ना खिलाए, से ठंड हो गई, एक बच्चे ने छींक मार दी तो स्वेटर पहना दिया गर्मी में भी। So this is wrong parenting. Be a good parent. Read about the disease. Read about the physiology of disease, and then help your child. And I'm sure जितने भी इस तरह के बच्चे हैं वो डेफिनेटली अगर ठीक तरीके से टैकल करे जाए और राइट टाइम उन्हें ट्रीटमेंट मिले तो बेटर करते हैं। So, ma'am, what is the role of other family members, relatives, and neighbors with these children? So, sir, I would say there are two scenarios. One is you know somebody who has an autism spectrum disorder. आपके कोई neighbors हो सकते हैं, आपके extended family में कोई हो सकता है, आपके कोई relatives हो सकते हैं, या कोई भी आपके extended circle में ऐसा बच्चा हो सकता है जिसको इस तरह के कोई भी neurodevelopmental problem. So we have to be like a support team for that family, for that child. So it's a festival. On festivals, we want to share our happiness. We want to make that child, make that family also happy and comfortable. So I think what we can do is हम उनसे सीख सकते हैं, उनकी फैमिली से सीख सकते हैं कि what is comfortable for your child. हम इसमें ये शेम नहीं फील करें कि यस ये चीज उन्होंने हमें ऐसे कैसे कह दिया, हम तो ऐसे ही करते आ रहे हैं हमेशा से. Probably we can help them out by doing things which are comfortable for that child. Maybe हम कुछ पटाखे कम चला लें, या मे बी हम उस बच्चे को बहुत ज्यादा फोर्स नहीं करें कि यू हैव टू कम आउट, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है, आपको बाहर आना चाहिए, खेलना चाहिए. मे बी इफ वी जस्ट हेल्प देम आउट इन दिस वेरी लिटिल वे, इट विल मीन अ ग्रेट डील टू देम. Okay.
And if my child doesn't have any neurobehavioral issues, then what should be our planning for these situations? Right. So I hope that there are some people who are listening to us here जिनके बच्चे को ऐसी problem नहीं है. But I think general public को everybody has to learn about this, because हो सकता है कल को हम किसी ऐसे बच्चे के टच में आए जिसे ऐसे issues हों. And again वही मैं बात दोबारा बताना चाहूंगी कि we might be able to help them make their life a little bit happier by knowing all these things and adjusting just that little bit, so that their life also becomes easier. एक लास्ट चीज मैं पेरेंट्स के लिए भी और ये ऐड करना चाहूंगी कि डोंट ट्राई टू डू एवरीथिंग ऑन दिवाली. हमारे बचपन में दिवाली ऐसी होती थी तो हम भी यही करना चाहते हैं, या ये सारी चीजें तो हमें करनी है क्योंकि हम सालों से ऐसी करते आए हैं. When you have a child who may have some kind of an issue, then probably हमें उतना ही करना चाहिए जितना हम कर सके, जिसमें हमारा बच्चा कंफर्टेबल हो. जब सब हैप्पी हैं तो आई थिंक वही फेस्टिवल का रियल मीनिंग है, rather than squeezing everything together. And so better we plan it out, we do a few things which are comfortable for everybody. And if we know somebody whose child, or you know somebody who has a child who has some kind of a neurodevelopmental issue, then also we adjust that little bit ताकि उनके लिए भी हम फेस्टिवल की इम्पोर्टेंस को बढ़ा सके. बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा आपने. रियल खुशी और रियल हैप्पीनेस तभी है जब सब खुश रहें, और हमें सबको एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए. दिस इज वेरी गुड थिंग you have said to us, and thank you very much, Dr. Meenal. Diptiman, there are some questions. Hello, Diptiman. Yeah, thanks, ma'am, and thanks, sir. There are a few questions, but it's more, I think, Dr. Meenal, if you can read, there is a question from Pratibha Sharma. So right. I hope you can. I think, madam, you have left your contact number. I am available at Surya Hospital, Jaipur. So if you have a premature baby, आप सूर्या हॉस्पिटल इमरजेंसी में कांटेक्ट कर सकते हैं. सूर्या हॉस्पिटल जयपुर इज opposite to SMS gate number 1, so you can contact there in the emergency or the NICU, and we have a great NICU team and we'll be able to help you. Well, and there are a few who still want to have get in touch with Dr. Meenal, can also reach out to Center for Child Neuro and Epilepsy right. As well, right? So I have a clinic, just like sir said, Center for Child Neurology and Epilepsy in Mansarovar. You can search me on Google, Dr. Meenal Garg Jaipur, and you'll be able to find me. So if you have any more questions, please call my clinic, or you can meet me. Absolutely, ma'am. This is such an interactive session, and a lot benefit will go to the parents who are raising children who are into the spectrum. And if you have anything missed out, or who are going to see it on the social platform, and they want to have any specific question to Dr. Meenal Garg or Dr. Anuj, please send it at info@timethebestmom.com. We will respond you over email, or we'll arrange some call back. Thank you so much, our audience today, and wishing you all a very happy Diwali. And thank you so much, Dr. Meenal Garg, coming to I'm the Best Mom for the second time. And we appreciate and value your time. Thank you so much, Dr. Anuj, sir, putting the question on behalf of many parents who are willing to ask to expert, but you are the medium. Thank you so much, sir. Thank you, sir. And thank you. I am the best mom, and I wish you all a very happy Diwali. Before we end the session, this is something from Dr. Anuj. See, our personality should be like sea glass. What is sea glass? Sea glass is a crooked rock inside the sea, which with the time, with every tide, that get better and better and better, and that become a very beautiful glass. So it was very rightly said by Bernadette Noll, a famous poet. I want to age like sea glass, smooth and tides not broken. I want the current of life to cross me. Shake me up, leave the feeling, watch me. I want my hard edges to soften as the year pass. Meet not weak, but supple. I want to ride the waves, go with the flow. Feel the impact of surging tides, rolling in and out. पूरी गूगल करके ये पोयम पढ़ सकते हैं, और ये हमारी सबकी लाइफ की फिलॉसफी होनी चाहिए. With every time, with every day, with every tiny inputs, we should improve our personality, we should improve our behavior. Happy
Happy Diwali to all of you, and thank you very much. Good night. Thank you so much. Good night, our audience.